Jai Shri Hari, Namaste, good evening. Welcome all of you to a very, very special session that we will be having today. Firstly, thank you for creating your, cleaning up your schedule and being here. Uh, Brahmachari ji is here with us to lead this session. Very, very quick and warm welcome to all of you. My name is Vikram Shastri. I represent Vedic Sadhana Foundation. And yet we are here for a very special session. As you all know, Tantra Sadhana is the app created by Sri Om Swamiji for us to walk the path of Tantra authentically. So, as you all know, we are all also part of this Tantra Circle community, which is now 15,000 of us strong, where we come together to attend these sessions, learn together, and practice the rituals on all the special occasions while we walk through the path of Tantra on the Tantra Sadhana app. So, as everybody, most of you would already know, Vedic Sadhana Foundation is a non-profit founded by Sri Om Swamiji, and his aim is to revive Vedic practices and make it accessible through technology, through our apps, through our handheld devices that you all now are using. Having said that, today's session, as I said, is special because ever since we launched Tantra Sadhana app, there have been many questions that many of you have been writing to us, and we thought it would be great if we could compile the questions that we all have and then get them answered. So this is one of the first such sessions, and thanks to Brahmachari ji for creating time in his schedule to come and answer these questions for us. So many of you had already asked these questions we had in the form. We have presented that to Brahmachari ji. There are a number of questions actually, so it wouldn't be probably possible to go through all of them. However, the most important ones, the most repetitive ones have been compiled, and Brahmachariji will be answering most of those queries. And during this session, you're welcome to ask questions in the chat as well. And the last 10 minutes, we will present those questions to Brahmachariji to also answer. So, welcome everyone. Let us without further ado, let's welcome Brahmachariji and get started with today's session. Jai Shri Brahmachariji, welcome to the session. Thank you so much for making the time for making this happen. Jai Shri Vikram. First of all, thank you so much for being such a wonderful host always. I welcome all of you, all the viewers, all the sadhaks जो यहाँ पर join हुए हैं. बहुत लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हो रही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. And I'm so happy. बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ. I'm definitely excited to be here and to answer all the questions, all the queries. So without further ado, we'll do Guru Stuti and then invoke Devi Ma first. उसके बाद हम आगे के सेशन की शुरुआत करेंगे. ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. ओम श्री मात्रे नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. इदम गुरवे इदम नमः. सो सबसे पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि आज का ये सेशन क्यों रखा गया. क्वेरीज तो डेफिनेटली हैं, क्वेरीज और क्वेश्चंस
हर रोज आते रहते हैं तंत्र साधना ऐप पर। किंतु एक उद्देश्य आज ये भी है कि आने वाली 22 सितंबर को, 22 सितंबर को जो नवरात्रि शुरू होने वाली है, 10 दिन की नवरात्रि होने वाली है इस बार, क्योंकि एक तिथि ज्यादा है। और हर बार नवरात्रि का ये जो पर्व है, ये पर्व अपने आप में बहुत एक उत्तमोत्तम और प्रचंड ऊर्जा लेकर आता है। स्वामी जी ने बहुत समय पहले एक सुंदर बात कही थी कि यदि कोई साधक, मैंने कल ही एक्चुअली एक सेशन में ये बात कही, यदि कोई साधक अपने पूरे वर्ष में, पूरे साल में भक्ति नहीं कर पाता, यदि कोई देवी माँ के उपासक हैं और वो पूरे साल के दौरान समय नहीं निकाल पा रहे हैं, अनुकूलता नहीं है उनके पास देवी माँ की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, तो यदि केवल पूरे वर्ष में आने वाली 4 नवरात्रि के दौरान यदि वो साधना कर रहे हैं, देवी माँ का स्मरण कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के विधि विधान के माध्यम से उनको पुकार रहे हैं, तो वो नवरात्रि ही पर्याप्त होती है उस भक्त को पूरे साल का फल देने के लिए। तो ये भी एक उद्देश्य था कि आपको आने वाली 22 सितंबर से शुरू होने वाली नवरात्रि से भी अवगत कराया जाए, और ये नवरात्रि क्यों सविशेष है इसके कारण के साथ भी आपको अवगत कराया जाए। नवरात्रि तंत्र साधना ऐप के लिए वो पर्व होता है, हम सब के लिए वो पर्व होता है, जहां पर बहुत ही एक्सक्लूसिव एक रिचुअल दिया जाता है साधकों को, जो है ध्यान श्लोक। स्वामी जी ने अपनी तपस्या के माध्यम से सभी महाविद्याओं को जागृत किया, किंतु महाविद्या के जागरण में जो सबसे प्रमुख बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो है देवी माँ का ध्यान कर पाना, उनको ध्या पाना, उनका विजुअलाइजेशन कर पाना, धारणा कर पाना कि माँ कैसी दिखती है, माँ का मुख कैसा है, मुखारविंद कैसा है माँ का, माँ के अंगन कैसे हैं, माँ का हाथ कैसा है, माँ के पैर कैसे हैं, माँ के नाक की नथनी कैसी है, माँ के चेहरे का तेज कैसा है, माँ ने क्या वस्त्र पहना है, कौन से रंग का पहना है, माँ को कौन सी चीजें पसंद है, कौन सा भोग, कौन सा नैवेद्य पसंद है। यही सारी चीजें जो हैं, जब एक साधक बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से विजुलाइज कर पाता है, धारणा कर पाता है, उस समय पर उनके और माँ के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती जाती है। उस एक क्षण के बाद जहां पर आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल हो गया, जिस क्षण पर आप देवी माँ का ध्यान बहुत ही सुदृढ़ तरीके से करने लगे, उसी क्षण से देवी माँ आपसे दूर नहीं रहती और ना ही आप उनसे दूर रह पाते हैं। और ये नवरात्रि का वो पर्व है जहां पर स्वामी जी ने जिन 10 महाविद्याओं को जागृत किया, जिन ध्यान श्लोकों के माध्यम से जागृत किया, जिन ध्यान श्लोक के माध्यम से स्वामी जी ने स्वयं देवी माँ का ध्यान किया, उनके स्वरूप को ध्याया, उनकी आराधना की, वही ध्यान श्लोक नवरात्र के 10 दिनों के दौरान तंत्र साधना ऐप पर उनके ही स्वर में अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि स्वामी जी के ही स्वर में उनके ही सिद्ध ध्यान श्लोक आप अपने घर पर बैठकर नवरात्रि के दौरान सुन पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे, उसके ऊपर चिंतन कर पाएंगे, और नित्य प्रतिदिन देवी माँ को पुकार पाएंगे, उनको आवाहन दे पाएंगे। तो इसीलिए आज के इस सेशन की शुरुआत मैं इसी एक बात के साथ करना चाहता था, ताकि आपको ये अनुमान हो, इस बात की गंभीरता हो कि ध्यान श्लोक कोई सामान्य श्लोक नहीं है। जब नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान, पूरे पर्व के दौरान आप वो ध्यान श्लोक को सुनेंगे, उसका श्रवण करेंगे, एक बात का हमेशा स्मरण रखिएगा कि वो जागृत है, और उन्हीं ध्यान के माध्यम से साक्षात स्वामी जी ने देवी माँ का साक्षात्कार किया था, उनके दर्शन किए थे, सिर्फ एक या दो देवी माँ के नहीं, 10 के 10 महाविद्याओं के। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, जो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कहीं पर रुके हुए हैं, थम गए हैं, आपको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये ध्यान श्लोक में वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो ऊर्जा है, वो प्रचंड शक्ति है
कि आपको देवी माँ के स्वरूप के साथ एक ही झटके में कनेक्ट कर सकते हैं, तत्क्षण कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप पूरा दिन उस ध्यान श्लोक का केवल श्रवण कर रहे हैं, उनके शब्दों को कान में सिर्फ एक रसपान कर रहे हैं, आस्वाद ले रहे हैं, तो भी विश्वास रखिएगा आपकी वो भक्ति खाली नहीं जाएगी। तो आप नवरात्रि के इन दिनों के दौरान चाहे कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हो, किसी भी अवस्था में हो, पवित्र हो अपवित्र हो, क्योंकि तंत्र तो इनसे ऊपर उठाने की ही बात करता है, तो इन चीजों को कभी दिमाग में नहीं रखना है कि मैं शूज पहनकर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ, वॉशरूम में हूँ, यहाँ पर हूँ वहां पर हूँ, नहाया नहीं है। इन सभी चीजों को बाजू पर रखते हुए नवरात्रि के दिनों के दौरान केवल इतना ही प्रयास करिएगा, जितना हो पाए उतना तंत्र साधना ऐप पर देवी माँ के ध्यान श्लोक का श्रवण करिएगा। चाहे 1 घंटे के लिए करे, चाहे 2 घंटे के लिए कर पाए, चाहे पूरे दिन से आपको 6 घंटे का टाइम मिले और आपने केवल वो बाजू में एक श्रवण के माध्यम से, सुनने के माध्यम से आपने उन श्लोकों को एक ऑन करके रख दिया है और आपके कान में वो श्लोक निरंतर गूंज रहे हैं, वो कभी खाली नहीं जाएंगे, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो भी अपने आप में एक ऐसी साधना है जो निरंतर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सुषुप्त दिमाग है, वो कॉन्स्टेंटली कर रहा होगा उन दिनों के दौरान। नवदा भक्ति में तो एक प्रकार ही है श्रवण कीर्तन, भक्ति का एक प्रकार ही ये दिया गया है कि आप जितना हो पाए उतना खाली समय में मन को खाली रखने की बजाय भगवान का श्रवण करते रहिए। वो श्रवण भी अपने आप में भक्ति ही है, नवधा भक्ति का ही एक प्रकार है। 9 प्रकार की भक्ति में से एक उत्कृष्ट प्रकार की भक्ति ये भी है। तो मैंने आपको इन सारी चीजों के बारे में पहले तो अवगत कराने के बाद इतना ही कहूंगा, 9 के बजाय 10 दिन मिलने वाले हैं इस बार, जो अपने आप में बहुत बड़ा अवसर होगा। जस्ट टू नॉट मिस द चांस। 4 बार नवरात्रि आती है, केवल 9-10 दिनों की बात होती है। पूरे साल में यदि कुछ भी नहीं कर पाए हैं, दिस इज योर चांस। इसके बाद अगर कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो भी इट इज, ये नहीं कहूंगा कि मैटर नहीं करता, पर डेफिनेटली ये है कि ये दिनों के दौरान आपने जो किया होगा उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे। सो ऑन दैट नोट विल स्टार्ट आवर Q&A। और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या डिफरेंस है रिम और रिंग बीज मंत्र में, क्रिंग और क्रिम, यानी कि म के साथ उच्चारण किया जाए, ग के साथ उच्चारण किया जाए, तब क्या डिफरेंस आता है, और इज इट हुम या फिर हुम। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार हर लाइव में पूछा जाता है। तो देखिए, मैं आपको स्वामी जी का ही मत बताऊंगा, क्योंकि स्वामी जी का मत शास्त्रों का मत होता है। जब रिम की बात आती है, HREEM, जब भी किसी मंत्र में, चाहे वो मंत्र तांत्रिक हो या फिर शाबर हो, क्योंकि कभी भी वैदिक मंत्रों में बीज मंत्र नहीं आते, जैसे कि ओम नमः शिवाय कोई बीज मंत्र नहीं है उसमें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र कोई बीज मंत्र नहीं है, तो कभी वैदिक मंत्रों में बीज मंत्र नहीं देखेंगे आप। जहां पर बीज मंत्र आ गया वो अपने आप तांत्रिक मंत्र बन जाएगा या फिर शाबर मंत्र बन जाता है। तो आप जहां पर भी ये देख रहे हैं, जहां पर भी मंत्र में बीज मंत्र आया, चाहे वो क्रिंग हो, क्लिंग हो, रिंग हो, एंग हो, इन सभी में यदि आप वैदिक टच देना चाहते हैं मंत्र को, एक मंत्र को वैदिक तरीके से जपना चाहते हैं, तो डेफिनेटली म के साथ, म फॉर मुंबई के साथ उच्चारण जो है वो किया जाता है। यानी कि रिम, फॉर एग्जाम्पल नवार्ण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, हमने म के साथ उच्चारण किया। जो सटल स्वर आता था नासिका से, हमारे नोज से, वो मंद स्वर जो है वो म के साथ आ रहा था इसमें। तो यहाँ पर ये मंत्र में थोड़ा सा वैदिक स्पर्श हमने ऐड कर दिया। इस मंत्र की तांत्रिक पराकाष्ठा को हमने थोड़ा सा टोन डाउन करके उसकी वैदिक
जो महत्ता है वो बढ़ा दी। तो क्या अंतर है इनमें? एक ही अंतर है। यदि आप तांत्रिक मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उसका पूर्ण प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमेशा अंग के साथ यानी कि गौ और गणपति के साथ उच्चारण करना चाहिए। यदि आप उस मंत्र का उस मंत्र की शक्ति को पूर्णतः धारण करना चाहते हैं, यानी कि ऐं ह्रीं क्लीं की बजाय ऐं ह्रीं क्लीं। और यदि माँ काली के बीज मंत्र की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल क्लिंग या फिर क्रिंग, तो उसमें भी KREENG या फिर KLEENG, क्रिंग या फिर क्लिंग। सो जब भी तंत्र की बात आए, तब प्रयास कीजिएगा कि अंग के साथ उच्चारण हो ग फॉर गणपति बीज मंत्रों का। किंतु यदि आप अब तक म के साथ उच्चारण कर रहे थे, म फॉर मुंबई, आप गलत नहीं है, आपने कोई बुरा काम नहीं किया है, आपने भक्ति ही की है, देवी माँ को पुकारा ही है। तो उसका प्रभाव तो अवश्य दिखेगा, किंतु जब जगे तब सवेरा। तो अभी आपने ये नॉलेज ले लिया, आज से आप जो कोई भी मंत्र का उच्चारण करें, चाहे तांत्रिक मंत्र का हो, चाहे शावर मंत्र का हो, चाहे कोई भी बीज मंत्रों का हो, वहां पर जब जब ऐसे सीड सिलेबल्स आए, तब प्रयास कीजिएगा कि अंग के साथ, ग फॉर गणपति के साथ मंत्र का उच्चारण करें। म के साथ आपने अभी तक किया था, उसका कोई दोष कभी नहीं लगेगा आपको, कोई पाप नहीं लगता। तो उन भ्रमणाओं में भी फंसने की आवश्यकता नहीं है। और हुम है या फिर हुंग है, यानी कि HUM है या फिर HUNG है, सो इट इज अगेन अंग के साथ। तो हुंग जो है वो नासिका से स्वर आएगा, मंद स्वर होगा, सटल वे में आपको उच्चारण करना है। आपके पास में जो कोई इंसान बैठा है, कोई साधक बैठा है, शायद उसे भी पता नहीं चलेगा कि आपने अंग का उच्चारण किया या फिर म का उच्चारण किया है। तो हुंग में भी मान लीजिए एक मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुंग, जो भगवान गणपति का एक मंत्र है, तो उसमें भी हमें वक्रतुंडाय हुंग HUNG का हम उच्चारण करते हैं, ना कि HUM। कई बार पुस्तकों में, इवन एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रा जो पुस्तक है स्वामी जी का, उसमें भी HUM दिया गया है, क्योंकि वो अम, ऐसे साधकों के लिए है जो सिर्फ पुस्तक पढ़कर मंत्र उठा लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर आगे ये भी पूछा गया है, जिसके ऊपर हम आएंगे कि पुस्तकों से क्या मंत्र लिया जा सकता है या नहीं। किंतु यहाँ पर एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रा में स्वामी जी ने अपने स्वर में किसी को इनिशिएट नहीं किया, इसलिए उन्होंने वहां पर HUM भी दिया हुआ है, तो इसलिए वो भी अलाउड है। यदि आप वो कर रहे थे अभी तक, जब इस बीज मंत्र का उच्चारण हो, इट इज कम्प्लीटली अलाउड, उसमें कोई दोष नहीं है। पर अब से आप प्रयास कीजिएगा कि पीछे अंग का उच्चारण करके मंत्र का उच्चारण कर पाए। साधना के दौरान, मंत्र जाप के दौरान राइट भाव यानी कि सही भाव, भक्ति भाव कैसे लाया जाए। देर इज अ ब्यूटिफुल श्लोक इन श्री ललिता सहस्रनामा। माँ के जो नाम है 1000, उसमें बताया गया कि भक्ति प्रिया, भक्ति गम्या, भक्ति वश्या भयापहा, शांभवी शारदाराध्या, शर्वाणी शर्मदाई, सांकरी श्रीकरी साध्वी, शरत चंद्र निभानना, शातोदरी शांतिमती, निराधारा निरंजना। भक्ति कैसे उत्पन्न की जाए, यदि आप उसका रहस्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ललिता सहस्त्र नाम के ये जो श्लोक दिए गए हैं, यहाँ से उसका रहस्य जो है माँ ने स्वयं उजागर किया है। वाग देवी, जो देवी माँ की 8 संगीनी शक्तियां हैं, जिन्हें वाग देवी कहा गया, उन वाग देवियों ने ललिता सहस्त्र नाम को लिखते वक्त इस रहस्य को उजागर किया कि एक साधक, एक भक्त अपने अंतर मन में सही भाव कैसे उत्पन्न कर पाए और कैसे साधना के मार्ग पर तीव्रता के साथ आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले तो एक कॉज दिया गया, कारण दिया गया। क्या कहा गया? भक्ति प्रिया, भक्ति गम्या, भक्ति वश्या भयापहा, शांभवी शारदाराध्या, सर्वाणी शर्मदायिनी। कहा गया कि माँ भक्ति प्रिया है, माँ को भक्ति अत्यंत प्रिय है। जो उन्हें भक्ति के साथ पुकारते हैं, वो तुरंत खींच चली आती हैं। भक्ति गम्या, जिन्हें भक्ति अत्यंत गम्य है और निरंतर भक्ति के माध्यम से आवाहन जिनको दिया जा सकता है, वो देवी माँ स्वयं है। भक्ति वश्या भयापहा, भक्ति के कारण ही, केवल भाव के कारण ही देवी माँ को वश में किया जा सकता है। यदि आप ये सोचकर चल रहे हैं, जो कि स्वामी जी ने भी कहा है, कि एक मंत्र का उच्चारण कर लिया, एक साधना कर ली, एक महापुरुष शरण कर लिया, और देवी माँ को मंत्रों के माध्यम से बांध कर, खींच कर लेकर आएंगे,
और उनको प्रसन्न होने पर, प्रकट होने पर मजबूर कर देंगे, आप बहुत बड़ी भ्रमणा में जी रहे हैं। देवी माँ सिर्फ एक ही एलिमेंट से वश में होती हैं, और वो एलिमेंट है भक्ति, डिवोशन। यदि आपके भीतर डिवोशन है, यदि आपके अंदर भक्ति है, तो ही देवी माँ को आप वश में कर पाएंगे, तो ही उन्हें आप प्रसन्न कर पाएंगे, तो ही उन्हें अपने जीवन में प्रकट होने के लिए, उनकी कृपा अपने ऊपर बरसाने के लिए मजबूर कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब आगे कहा गया कि क्या करना है इसके लिए। तो तब हमें पूरा एक एक माला मंत्र टाइप प्राप्त होता है भक्ति उत्पन्न करने के लिए, ललिता सहस्त्र नाम से। निर्लेपा निर्मला नित्या, निराकारा निराकुला, निर्गुणा निष्कुला शांता, निष्कामा निरुपप्लवा, नित्य मुक्ता निर्विकारा, निष्प्रपंचा निराशया, नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निरवध्या निरंतरा, निष्कारणा निष्कलंका निरूपाधिर निरीश्वरा, नीरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी, निश्चिंता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी, निर्ममा ममता हंत्री, निष्पापा पापनाशिनी, निष्क्रोधा क्रोध शमनी, निर्लोभा लोभनाशिनी, निसंशया संशयदनी, निर्भवा भवनाशिनी, निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी, निर्नाशा मृत्युमथनी, निष्क्रिया निष्परिग्रहा, निस्तूला नीलचिकुरा, नीरपाया निरत्यया, दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा, दुख हंत्री सुखप्रदा। माँ कब सुखप्रदा बनती है, माँ कब दुख हंत्री बनती है? जिस दिन से आपने अपने स्वयं के ऊपर काम करना शुरू किया, स्वयं का निर्मलीकरण शुरू किया, स्वयं का पवित्रीकरण शुरू किया। इसलिए सबसे पहला उपाय क्या बताया गया इन श्लोकों में? निर्लेपा निर्मला नित्या। आप जिस दिन से निर्लेपा होते गए, अर्थात निर्लेप होते चले गए, निर्मल होते चले गए, और निरंतर शुद्ध होते चले गए, नित्या होते चले गए, नित्य प्रतिदिन आपने अपने जीवन में अपना शुद्धिकरण जो है वो कंटिन्यू रखा, जारी रखा, तब आप क्या बन जाते हैं? नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निरवध्या निरंतरा। जब एक इंसान नित्य शुद्ध होता है, तभी वो नित्य बुद्ध बन पाता है, अर्थात देवी माँ की प्राप्ति कर पाता है, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन नित्य बुद्ध बनने के लिए पहले नित्य शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। तो ऐसे जो है वो माला मंत्र के माध्यम से हमें बताया गया कि आपको अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए। जितना हो पाए उतना दया भावना के साथ निष्पाप होते चले जाइए, निष्क्रोध होते चले जाइए, मन में क्रोध की भावना कम करते जाइए। निष्क्रोधा माँ का एक नाम दिया गया। निर्विकल्पा निराबाधा भेदनाशिनी। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर उपाय दिए गए, जहां पर आपको इतना ही सुनिश्चित करना है कि आप अपने विकारों के ऊपर काम कीजिए, अपनी वृत्तियों के ऊपर काम कीजिए। जितना आप अपने विकारों को नाश करने के लिए, उसका एक खात्मा करने के लिए आप प्रशस्त होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, अपने स्वयं के ऊपर काम करेंगे, उतना ही आपके अंदर भाव जो है वो प्रकट होता जाएगा और तीव्र होता जाएगा। ये मेरा अपना भी अनुभव है। आज से 5 साल पहले का जो मेरा एक रूटीन था, या फिर मेरा अपना जो स्वभाव था, वहां से लेकर आज तक जो मैंने साधनाएं की, उसमें फोकस ये नहीं था कि कभी भी मुझे ये प्राप्त कर लेना है, वो प्राप्त कर लेना है। मेरा उद्देश्य हमेशा एक रहा कि मुझे बस गुरु कृपा चाहिए और देवी माँ की प्राप्ति। और उसके लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके उतना अपने आसपास के वातावरण में जो भी लोग रह रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता कीजिए। दया और करुणा की भावना के साथ चलिए, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है साधना के। ये कोई आम क्वालिटीज नहीं है। जितना आप इन दोनों क्वालिटीज को इम्बाइब करते जाएंगे, प्रेम भाव के साथ जीना शुरू करेंगे, उतना ही आप ज्यादा निर्मल होते जाएंगे। एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। इससे ज्यादा मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पाऊंगा। बाकी सारी बातें जो है वो एक बुकिश नॉलेज हो जाएगा, जो मैं कभी देता नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो गुरु से प्राप्त हुआ वो आप तक पहुंचाऊं, और जो मेरा अनुभव रहा वो मैं आप तक पहुंचाऊं।
पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, मुझे सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें या फिर देखी हुई बातें कहने में रुचि नहीं है। जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने स्वयं अपने आप के ऊपर काम किया, वही मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। और यही मेरा एक फलसफा रहा है इतने समय का, इसकी वजह से जो मेरे ऊपर कृपा हुई गुरु की और देवी माँ की, वो इसके ही कारण संभव हो पाया। ये मेरा अपना मंतव्य है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप नित्य शुद्ध होते जाएंगे तो भाव अपने आप प्रकट होगा, और नित्य बुद्ध अपने आप ही बन जाएंगे। वो बाय प्रोडक्ट है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। मंत्र काउंटिंग एंड डिसिप्लिन क्या हमें डेली करना है? तो अगर नित्य पूजा है तो नित्य पूजा में आपको कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं होगा आपका, वो भी चलेगा। उसमें कोई समय फिक्स नहीं होगा तो भी चलेगा, काउंटिंग फिक्स नहीं होगा तो भी चलेगा। किंतु यदि आप मान लीजिए तंत्र साधना ऐप पर शव साधना कर रहे हैं, या फिर आप माँ तारा की स्मशान साधना कर रहे हैं, या फिर माँ त्रिपुर सुंदरी की आप श्रीयंत्र साधना कर रहे हैं, तो साधना एक ऐसा विधान है जहां पर समय का बोध जरूर रहना चाहिए। साधना एक ऐसा रिचुअल है जहां पर आपको डेफिनेटली मंत्र काउंटिंग जो है, मंत्र चांटिंग, उसका ध्यान रखना ही पड़ता है। तो जितना ज्यादा, ये स्वामी जी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप वो डालेंगे, जैगरी जो है वो डालेंगे, उतना ज्यादा जो डेजर्ट है वो और आ, उसका आस्वाद अच्छे से आ पाएगा, उसका रस अच्छे से आ पाएगा। तो अगर आप अपनी भक्ति में, अपनी साधना में रंग लाना चाहते हैं, स्वाद लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली काउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। किंतु क्वालिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, दोनों चीजों का एक साथ ध्यान रखिए। जितना हो पाए उतना कोशिश कीजिए अपने मन को एकाग्र चित्त करके काउंटिंग करने के साथ। शुरुआत कीजिए 15 मिनट के साथ, 20 मिनट के साथ, 10 मिनट के साथ, और धीरे 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 अपने माइंड को ट्रेन करते हुए 1 घंटे तक जाइए, 2 घंटे तक जाइए। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि आज करूं ना करूं, बहुत थक चुका हूं। अपने आप ही आपका मन करेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने खाना पीना नहीं छोड़ा वैसे मैं साधना नहीं छोड़ूंगा। तो काउंटिंग और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन साधना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नित्य पूजा में आपने एक आध दिन ब्रेक रख लिया, दैट इज फाइन, पर साधना में डिसिप्लिन इज द की। क्या बीज मंत्र बुक से या फिर विदाउट गुरु खुद से हम जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर स्वामी जी ने एक बुक लिखी है कुंडलिनी, जिसमें देवी माँ के निराकार स्वरूप की साधना के बारे में बहुत उत्कृष्ट बातें लिखी गई हैं और बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं। उसमें जब महर्षि अगस्त्य की बात आती है, भगवान हयग्रीव के द्वारा उन्हें श्री ललिता सहस्रनाम सुनाया गया, सबसे पहली बार दिया गया, प्रदान किया गया, तब महर्षि अगस्त्य का भी वहां पर यही थॉट लिखा गया है कि उन्होंने दीक्षा लेना ज्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दीक्षा के माध्यम से ये जो फल है ना, उसमें बीज के साथ फल आएगा। अन्यथा यदि दीक्षा के बिना हम कर रहे हैं कुछ भी, तो होगा ये कि वो फल बीज के साथ नहीं आएगा। यानी कि एक बार आपने वो फल खा लिया, वो हजम हो गया, बात खत्म। यदि आप उस फल से बड़ा सा वृक्ष बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में बार बार उस फल का आनंद लेना चाहते हैं, उस साधना का फल चखना चाहते हैं, उस साधना के प्रभाव को अनुभव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बीज का होना नितांत आवश्यक है। तो इसी कारण से ललिता सहस्रनाम की दीक्षा भगवान हयग्रीव के द्वारा महर्षि अगस्त्य को दी गई थी। जब बात आती है तंत्र साधना ऐप की, साधना ऐप की, यहाँ पर आपको स्वयं ही स्वामी जी के द्वारा दीक्षा दी जा रही है। आपको चाहे ये बात ज्ञात हो या ना हो, किंतु ये विधान जो है वो स्वामी जी ने ही वहां पर सेट किया हुआ है कि यदि आप उनके स्वर में मंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं 27 बार, 27 टाइम्स, यू आर इनिशिएटेड इन द मंत्र, यू आर इनिशिएटेड बाय हिम, परोक्ष तौर पर, नॉट प्रत्यक्ष बट परोक्ष, इनडायरेक्टली। सो इस मामले में जहां पर तंत्र साधना ऐप की बात आती है या फिर साधना ऐप की बात आती है, आपको दीक्षा या फिर गुरु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मंत्र की दीक्षा देने के पश्चात, और वो भी सिद्ध मंत्र, कहीं से पुस्तक से उठाया हुआ मंत्र नहीं,
जब ऐसे मंत्रों की बात आती है जो स्वामी जी ने स्वयं जागृत किए हो, और उनके विधान के द्वारा, उनके स्वर में, उन्हीं के द्वारा प्रदान किए गए हो एक स्पेसिफिक सेल्फ इनिशिएशन रिचुअल के द्वारा, तब आपको दीक्षा अपने आप ही मिल रही है। तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पर कर सकते हैं। रही बात पुस्तकों की, तो मुझे अन्य पुस्तकों का तो ज्ञात नहीं है, किंतु इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी, वहां पर जो मंत्र दिए गए हैं, या फिर हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र, लेजेंड ऑफ द गॉडेस, वहां पर स्वामी जी ने लिखा भी है फॉरवर्ड में कि यदि आप साधना के पथ पर चलना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर यहाँ पर इस पुस्तक में दी गई साधना कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी दोष लगता है, वो दोष मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। यदि कोई भी क्षति है, मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। ये बात लिखने के बाद ही उन्होंने वहां पर मंत्र दिए और विधि विधान दिए। आप एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास का फॉरवर्ड पढ़ सकते हैं। तो यदि आप उनमें से, उन पुस्तकों से मंत्र ले रहे हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं स्वामी जी के द्वारा दीक्षित हो रहे हैं। यदि आप तंत्र साधना ऐप पर या फिर साधना ऐप पर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो भी इनडायरेक्टली आप परोक्ष स्वरूप में स्वामी जी के द्वारा ही उनके मंत्रों में दीक्षित हो रहे हैं। निश्चिंत होकर साधना करिए। सलीबसी फॉर गृहस्थ, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि अम, सबसे हार्ड चीज लोग इसे मानते हैं। तो जहां तक गृहस्थ की बात आती है, तो वहाँ शास्त्रों का मत तो ये भी है कि यदि आप विवाह संस्कार में जुड़े हुए हैं और गृहस्थ हैं, तो आपके पार्टनर के प्रति आपकी जो वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वही अपने आप में ब्रह्मचर्य का पालन है। और रही बात तंत्र साधना ऐप की, तो यहाँ पर डेफिनेटली सलीबसी की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर खास करके बात हो रही है देवी माँ काली की साधना की, माँ तारा की साधना, माँ छिन्नमस्ता की साधना, धूमावती की साधना। किंतु जहां पर आप माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना कर रहे हैं, श्री यंत्र साधना, इट इज प्योरली सात्विक साधना, और उसमें हम डेफिनेटली ध्यान रखते हैं ब्रह्मचर्य का। तो श्री विद्या साधना का ये जो मार्ग स्वामी जी ने तंत्र साधना पर प्रशस्त किया, या फिर जो भी उन्होंने अपनी साधना की हिमालय के जंगलों में, वो साधना संपूर्णतया श्रीकुल से हुई थी। जिसका अर्थ है कि सात्विक तरीके से, सात्विक माध्यम से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अम, जितना हो पाए उतना सात्विक भाव में रहते हुए उन्होंने ये साधना की, और तभी साक्षात्कार संभव हो पाया। तो जहां पर इन साधनाओं की बात है, जहां पर द्रव्य ही सात्विक हम अर्पण कर रहे हैं, जहां पर साधना ही सात्विक है और श्री कुल से की जा रही है, नॉट फ्रॉम द काली कुल, वहां पर डेफिनेटली आप गृहस्थ हैं तो भी आपको जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। भैरव पूजा या साधना रिक्वायरमेंट है महाविद्या से पहले। सो मेरा बहुत ही फर्म स्टैंड है इस पॉइंट के ऊपर। देर इज नो भैरव साधना रिक्वायर्ड बिफोर डूइंग एनी महाविद्या साधना, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु के जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, वही मेरे लिए सर्वोच्च सत्ता है, और उनसे ऊपर मेरे लिए कुछ है नहीं। चाहे बात हो इफ ट्रूथ बी टोल्ड की, चाहे बात हो 13 months इन द हिमालयास की, चाहे बात हो एंशियंट साइंस ऑफ मंत्रास की, जहां पर स्वामी जी ने अपनी जर्नी लिखी हुई है, कई साधनाएं वहां पर उन्होंने दी हुई है। एक भी स्थान पर, एक भी वाक्य में, एक भी शब्द में उन्होंने ये वर्णन नहीं किया, ये उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी भैरव साधना की है। जहां पर उन्होंने अपना पूरा जीवन लिख दिया, पूरे जीवन की साधना दे दी हम सबको, उन पूरे पुस्तकों के अंदर कहीं पर भी भैरव साधना का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। जिसका अर्थ है कि भैरव साधना महाविद्या साधना से पहले रिक्वायर्ड नहीं है। चाहे इंटरनेट कुछ भी कह रहा हो, चाहे वर्तमान ट्रेंड कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु की वाणी ही सर्वोच्च है, और वही शास्त्रों की वाणी है जो हम सब जानते हैं। दूसरी बात, जहां पर आप शव साधना कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी साधना कर रहे हैं, आपने शायद सुना होगा कि वहां पर कुछ कुछ भैरव मंत्र दिए गए हैं। तो जहां पर दिक्पाल को जागृत करने की बात आती है, क्षेत्रपाल को जागृत करने की बात आती है, वहां पर भैरव मंत्र का प्रयोग किया गया है। मंत्र का प्रयोग, पूजा नहीं की गई,
साधना नहीं रखी गई, ना साधना ऐप पर दी गई, ना तंत्र साधना ऐप पर दी गई। केवल मंत्र का उच्चारण वहां पर आप सुनेंगे, और वो भी स्पेसिफिकली तब जब क्षेत्रपाल को जागृत करना होता है, जब 8 दिशाओं में या 10 दिशाओं में द्वारपाल को जागृत करना होता है, दिग्बंधन करना होता है। उन समय के ऊपर आप मंत्र का श्रवण अवश्य करेंगे, और वो भैरव के ही मंत्र है। किंतु क्या स्पेसिफिक पूजा की गई है, स्पेसिफिक रिचुअल किया गया है भैरव के ऊपर? जवाब है ना। क्या भैरव साधना रिक्वायर्ड है महाविद्या साधना से पहले? जवाब है ना। कैन साधना बी डन विदाउट ह्यूमन गुरु? डेफिनेटली इट कैन बी डन विदाउट अ ह्यूमन गुरु। इनफैक्ट हमारे जो तंत्र शास्त्र हैं, तंत्र राज तंत्रम, महानिर्वाण तंत्रम, रुद्रयामलम तंत्र, तीनों में बार बार आप ये वर्णन प्राप्त होगा, जहां पर विनियोग आप पढ़ेंगे, जहां पर भी आप ये पढ़ेंगे कि महादेव के द्वारा माँ पार्वती को दीक्षा दी जा रही है, या फिर एक कथन किया जा रहा है, कथन सुनाया जा रहा है, वहां वहां पर हमेशा दक्षिणामूर्ति शिव का नाम आप अवश्य सुनेंगे। या फिर भैरव भैरवी के बीच में जो संवाद है, यानी कि महाभैरव अर्थात भगवान महादेव स्वयं, और भैरवी अर्थात माँ पार्वती स्वयं। तो जहां पर इन संवादों की बात आती है और साधनाओं की बात आती है, जहां पर जिनके पास ह्यूमन फॉर्म में गुरु नहीं है, मानव गुरु नहीं है, उनके लिए तंत्र शास्त्र ने ये विधान दिया कि आप दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु मानकर आगे बढ़ सकते हैं। किंतु गुरु के बिना कोई साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। यदि आपके मानव गुरु हैं तो उन्हें धारण करना चाहिए, यदि नहीं है तो दक्षिणामूर्ति शिव को मन में ध्याते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि वो भी नहीं करना चाहते तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि आप इनिशिएट हो रहे हैं स्वामी जी के द्वारा जागृत मंत्र में, तो आपको उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है व्हेन यू आर डूइंग साधना ऑन तंत्र साधना ऐप। सो इन चीजों से मुक्त हो जाइए। ये प्रश्न मैं कम से कम इसका जवाब 2 साल से दे रहा हूँ, एंड आई एम नॉट जोकिंग। 2 साल हो गए हर एक पॉडकास्ट में इस प्रश्न का जवाब देते हुए, 2 साल हो गए हर एक इंटरव्यू में इस प्रश्न का जवाब देते हुए, 2 साल हो गए हर क्यूएनए में इस प्रश्न का जवाब देते हुए। तो अब मुझे ये लगने लगा है कि यदि मुझे एक ही बात 2 साल तक बोलनी पड़े तो कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या कहीं ना कहीं सुनने में कुछ गलती हो रही है आपसे। सो इट्स योर कॉल टू डिसाइड कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जस्ट किडिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन टू महाविद्या साधनास कैन बी डन साइमल्टेनियसली? जवाब है ना, नहीं हो सकती। क्योंकि दो टेक्निकली महाविद्याओं की ऊर्जा को आप ओवरलैप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप ऐप के ऊपर कर रहे हैं माँ काली की साधना, और साथ में आपकी तारा माँ की साधना जो है वो चल रही है, और फिर से आपने माँ काली की साधना साइमल्टेनियसली शुरू की, तो दो ऊर्जाओं को आप एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं। उससे ये होगा का, एक कहावत है ना हमारे हिंदी में कि अम, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो हमें वो नहीं बनना है। एक ऊर्जा को, एक महाविद्या को एक समय पर जागृत करें, दो को एक साथ जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देर इज अ कैच। जब आप किसी भी महाविद्या की साधना कर रहे हैं, उसके साथ मान लीजिए आप तंत्र साधना ऐप पर माँ काली के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, इट इज कंप्लीटली अलाउड। पूर्णतया आप कर सकते हैं, निश्चिंत होकर कर सकते हैं, क्योंकि वो साधना नहीं है, वो एक नित्य पूजा का भाग माना जाएगा। तो यदि आप माँ तारा की साधना कर रहे हैं तो साथ में मान लीजिए माँ काली अथवा माँ त्रिपुरा सुंदरी का जप जो है वो कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ध्यान श्लोक सुन सकते हैं, जितना चाहे उतना सुन सकते हैं। यज्ञ कर सकते हैं, जो तांत्रिक यज्ञ वहां पर दिया गया है माँ काली का, वो कर सकते हैं। माँ तारा का तांत्रिक यज्ञ जो है वो कर सकते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी का यज्ञ जो है वो कर सकते हैं। किंतु दो साधना, फॉर एग्जाम्पल शव साधना और स्मशान साधना, ये दोनों साथ में आप नहीं कर सकते ड्यू टू ओवरलैप ऑफ एनर्जीज। या फिर श्रीयंत्र साधना और स्मशान साधना आप साथ में आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आप एनर्जीज को ओवरलैप नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन श्रीयंत्र साधना के साथ माँ तारा के मूल मंत्र का जप कर लीजिए, जो है ओम रिंग त्रिंग हुम फट, ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट, दोनों में से जो भी आपको सही लग रहा है। तंत्र साधना ऐप पर आप उस मंत्र का निरंतर जाप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग। तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप यदि दो ऊर्जा को एक साथ
जागृत करना चाहते हैं, इट इज योर कॉल। पर कोई तो रीजन होगा ना कि तंत्र साधना ऐप पर स्वामी जी ने एक के बाद एक रेल्म को अनलॉक करने के लिए का विधान दिया है कि पहले आप जब तक माँ काली को सिद्ध नहीं कर लेते, उनको आप जागृत नहीं कर लेते, तब तक आप माँ तारा पर नहीं पहुंच सकते। जब तक माँ तारा की साधना पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक आप साइमल्टेनियसली तीसरी साधना यानी कि श्री यंत्र साधना शुरू नहीं कर पाएंगे। जब तक वो नहीं संपन्न होती, तब तक भुवनेश्वरी माँ की साधना आप नहीं शुरू कर पाएंगे। सो देर माइट बी अ रीजन बिहाइंड इट। और ये रीजन यही है कि आप एक समय पर एक साधना के माध्यम से एक महाविद्या को जागृत कीजिए। उसके बाद यदि आपकी इच्छा है तो फिर से एक बार अलग अलग अनुष्ठान कीजिए, अलग अलग संकल्प लीजिए। 40 दिन का लीजिए, 80 दिन का लीजिए, जो आपका मन कर रहा है। फिर से एक बार वही साधना आप पुनरावर्तित कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। क्या उच्छिष्ट गणपति और माँ तारा की साधना साथ में हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि उच्छिष्ट गणपति की ऊर्जा अलग प्रकार की है और माँ तारा की साधना जो है वो अलग प्रकार की महाविद्या है। तो एक महाविद्या है और एक गणपति भगवान का स्वरूप है, दोनों संप्रदाय ही अलग हो गए। एक गाणपत्य तंत्र की हम बात कर रहे हैं, एक बात हम कर रहे हैं शाक्त तंत्र की। तो इनफैक्ट कई प्रश्न शायद ये भी आएंगे कि आने वाले टाइम में कुछ लोग नवदुर्गा साधना भी करेंगे नवरात्र में, और साथ में 10 महाविद्याओं के ध्यान श्लोक भी करेंगे, और शायद माँ काली अथवा माँ तारा की साधना भी कर रहे होंगे आप। तो इट इज कम्प्लीटली अलाउड, क्योंकि वो एक्सेप्शनल साधना है। नवदुर्गा साधना केवल साल में 4 बार आती है और वो उसी समय पर की जाती है, इसीलिए दैट इज अलाउड। पर जो साधना आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, उन साधनाओं को ओवरलैप ना करें, वही एक सलाह होगी। और इसमें भी आप अपनी अ, स्वमति के अनुसार, स्वबुद्धि के अनुसार एक्ट कर सकते हैं। क्या आप अपनी पुरानी साधना को तंत्र साधना के साथ जारी रख सकते हैं? तो अगर आपकी कोई पहले से साधना चल रही है और आप तंत्र साधना ऐप पर नई साधना ले रहे हैं, तो पहले तो प्रयास ये कीजिए कि आप पहली पुरानी साधना संपन्न कर लीजिए। यदि वो साधना बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा दिनों के लिए आपने संकल्प लिया है, तो फिर तंत्र साधना ऐप पर आप अपनी महाविद्या की साधना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगेन, अगर दोनों साधनाएं ही अलग अलग हैं, दोनों महाविद्या की साधनाएं नहीं है, तो डेफिनेटली आप दो साधनाएं एक साथ कर सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। क्या माँ काली का जो चक्र है, उनकी जो साधना है, वो बार बार रिपीट की जा सकती है अलग अलग साधनाओं के साथ? जवाब है हाँ, डेफिनेटली की जा सकती है। पर अगेन प्रयास कीजिएगा कि यदि आप किसी और महाविद्या की साधना कर रहे हैं, तो साथ में माँ काली की शव साधना करने की बजाय उनके मंत्र का जाप करिए और हर रोज प्रतिदिन तांत्रिक यज्ञ कीजिए। यज्ञ इज वेरी मच पावरफुल, माँ कालीज मंत्र जाप इज वेरी मच पावरफुल। तो जब आपकी एक साधना संपन्न हो जाए, फिर यदि आपको फिर से एक बार माँ काली की साधना करनी है, जरूर कीजिए। किंतु जब पहले कोई दूसरी महाविद्या की साधना चल रही है, उसके साथ आप माँ काली का भी स्मरण निरंतर करना चाहते हैं, तो माँ काली के मूल मंत्र जाप तंत्र साधना ऐप पर कीजिए और तांत्रिक यज्ञ निरंतर कीजिए। चाहे दिन में 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, इट इज अप टू यू। किंतु मेरी सलाह हमेशा आपको यही रहेगी, एक समय पर एक महाविद्या, एक साधना, एक ऊर्जा का जागरण, वन स्टेप एट अ टाइम। कंबाइनिंग ललिता सहस्रनामा and विष्णु सहस्रनामा विद तंत्र साधना, डेफिनेटली इट इज अलाउड। इनफैक्ट पिछले कई महीनों से मुझे याद नहीं है कि मैंने सहस्र नाम का उच्चारण ना किया हो अपने नित्य जीवन में, नित्य साधना में। तो ललिता सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम आप कभी भी उच्चारण कर सकते हैं। तंत्र साधना के साथ साथ आप इन साधनाओं को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप में से कोई बद्रिका आश्रम आ रहे हैं ललिता सहस्रनाम साधना करने के लिए या फिर विष्णु सहस्रनाम साधना करने के लिए, तो भी आप इसके साथ साथ तंत्र साधना को जारी रख सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। और ललिता सहस्रनाम की जो साधना है या फिर विष्णु सहस्रनाम की जो साधना है, वो वास्तव में एक एलएस फॉर एग्जाम्पल, ललिता सहस्रनाम इज द वेरी बिगिनर स्टेप, बहुत ही इनिशियल स्टेप है श्री विद्या साधना का। तो यदि आप वो दोनों साथ में कर भी रहे हैं, उसका कोई उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है।
क्या गणपति गायत्री और गुरु साधना जरूरी है महाविद्या साधना से पहले? तो यहाँ पर फिर से एक बार स्वामी जी का वचन ये है कि प्रत्येक साधक को जीवन में कम से कम एक बार गणपति गायत्री और गुरु साधना करनी चाहिए। पर क्या महाविद्या साधना से पहले करनी चाहिए? जवाब है ना। आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आप महाविद्या साधना से पहले कर रहे हैं तीनों साधनाएं, तो भी अच्छा है। अगर बारी बारी से एक के बाद एक आप महाविद्या के साधना के साथ साथ आप एक एक साधना करते जा रहे हैं, इट इज ऑल्सो फाइन। यदि महाविद्या साधना के कंप्लीट होने के बाद आप तीनों के तीनों साधनाएं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। पर जीवन में, पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार प्रयास कीजिएगा कि आप तीनों साधना के एक एक अनुष्ठान, यानी कि टोटल 1.25 लाख का जो जाप है, गणपति मंत्र का 1.25 लाख, गायत्री मंत्र 1.25 लाख और गुरु साधना का 1.25 लाख, ये पूरे जीवन काल में एक बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये साधक के आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। फिर कुछ प्रश्न आए हैं कि अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखते हैं हमें, अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स होती हैं। कोई कह रहा है कि हमें कुछ अनुभव होते हैं, हैवीनेस फील होती है, सर दर्द करता है, कई बार बॉडी मूवमेंट्स करती हैं, लस्ट की अनुभूति होती है, बुरे ख्याल आते हैं, या फिर डर लगता है, स्लीप पैरालिसिस का अनुभव लगता है, हृदय जो है वो कई बार बहुत तेज धड़कने लगता है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये सारे अनुभव जो है वो आपकी साधना की यात्रा का ही एक भाग है, और इससे अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो यदि अनुभव के ऊपर रुक गए या फिर डर गए या फिर थम गए, तो साधना की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, और हमें इतने सारे फ्रीक्वेंट मेल्स आते हैं, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दी। आप तो ऐप की बात कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य तब होता है कि जब लोग साधना कर रहे होते हैं, नवरात्रि की, माँ दुर्गा की, नव दुर्गा साधना कर रहे होते हैं, या फिर श्री यंत्र साधना कर रहे होते हैं तंत्र साधना ऐप पर, तब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि माँ की कोई योगिनी प्रकट हो गई और उन्हें स्वप्न में कुछ दिख गया और उन्हें डर लग गया और वो जाग गए स्वप्न से उठकर डर कर। तो ऐसी ऐसी चीजें हमें लोग कहते हैं नित्य प्रतिदिन, कि उससे ही इतना बड़ा आश्चर्य पैदा होता है कि आप एक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। आपको श्रद्धा होनी चाहिए देवी माँ में, ना कि कोई ऐसे बुरे ख्यालों में या फिर अपने मन के ऊपर जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपके मन का काम है आपको रोकना। आपके मन का कार्य है कि आपको ऐसी चीजों में भटकाना जो चीजें उसको आनंद देती हैं। साधना से किसी को आनंद प्राप्त नहीं होता, एटलीस्ट करते वक्त तो नहीं होता। सिंपल बात है ना, कि जब हम जिम करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तब करते वक्त आनंद नहीं होता। एक्सरसाइज संपन्न होने के बाद हमें फील होता है कि हाँ, हमारा बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रहा है उसके मामले में। तो यही बात साधना के मामले में भी लागू होती है। चाहे कोई भी अनुभव हो, चाहे आपका मन आपको किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास करे, चाहे वो डराने का प्रयास करे, या फिर कोई कोइंसिडेंसेस हो। कई बार प्रश्न आते हैं कि शव साधना हमने शुरू की और 3-4 दिन में कुछ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, क्या ये शव साधना की वजह से हुआ होगा? कोई भी माँ अपने बेटे या बेटी को क्यों परेशान करेगी उन्हें पुकारने के लिए? तो आई थिंक इन प्रश्नों से अब समय आ चुका है कि हमें ऊपर उठना चाहिए, और केवल देवी माँ में श्रद्धा रखते हुए, भाव भक्ति के साथ समर्पण रखते हुए, केवल साधना के ऊपर फोकस करना चाहिए। मीनिंग्स ऑफ ऑफरिंग्स, क्या ये जरूरी है इसका अंडरस्टैंडिंग? यानी कि जब आप यज्ञ में आहुति देते हैं, तब उन आहुतियों के अर्थ को समझना जरूरी है। तो जहां तक सवाल है एक बिगिनर का, उनके लिए केवल इतना जरूरी होता है कि आप इनिशियल फेज में केवल रिचुअल के ऊपर ध्यान दें। धीरे 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 2 साल 3 साल बीतने के बाद उसके साथ साथ आप अध्ययन शुरू कीजिए।
ग्रंथों का अध्ययन शुरू कीजिए। दिन में संकल्प लीजिए कि साधना के साथ 5 पेजेस पढ़ूंगा कोई अच्छे ग्रंथ का। शुरुआत कीजिए रामायण से, महाभारत से, रामचरितमानस से, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् देवी भागवतम से, श्रीमद् भगवत गीता से, और धीरे 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 अध्ययन बढ़ाते बढ़ाते तांत्रिक ग्रंथों के ऊपर जाइए। 2 साल 3 साल के बाद आपके पास इतना नॉलेज अपने आप होगा कि आपको अर्थ जानने के लिए बाहर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। किंतु पहले ही दिन पर समंदर नहीं पिया जा सकता। इट्स अ जर्नी। शनै ही शनै ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको धैर्य के साथ चलना है, अपने आप के ऊपर काम करना है, अध्ययन करना है। और इनिशियली जब आप यज्ञ कर रहे हो या फिर साधना कर रहे हो, नित्य पूजा कर रहे हो देवी माँ की, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप उनके मंत्र का अर्थ जानकर ही करो। इंपॉर्टेंट इतना ही है कि आप जिनका जाप कर रहे हो, जिनकी साधना कर रहे हो, उनके स्वरूप को मन में धारण कर लो। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि माँ काली का स्वरूप है कैसा। जब आप ऐप पर साधना कर रहे हैं, वहां पर तो आपको माँ काली का स्वरूप दिखाया भी जाता है। माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी दिखाई भी जाती है वहां पर, उनके दर्शन भी कराए जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ इतना ज्ञात है कि माँ का स्वरूप कैसा है, आपकी साधना अपने आप संपन्न होती जाएगी। मंत्र का अर्थ बाजू पर रह जाएगा, यज्ञ की आहुति का अर्थ बाजू पर रह जाएगा। निश्चिंत होकर केवल अभी फोकस कीजिए मंत्र के ऊपर, रिचुअल्स के ऊपर और देवी माँ के स्वरूप के ऊपर। क्या अल्कोहल, फिश और हड्डियां जो है वो तंत्र में क्या है, और वैदिक यज्ञ में प्योरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, तंत्र हमेशा एक ही बात कहता है कि मैं उन सभी कंडीशनिंग से ऊपर उठ जाऊंगा जो समाज को नहीं पसंद। समाज के लिए जो असभ्य बात है, असंस्कृत बात है, मैं उसके बीच में रहकर अलिप्त होकर दिखाऊंगा। मैं वो कमल की तरह खिलूंगा जो कीचड़ में पैदा होगा, लेकिन कीचड़ का प्रभाव उस कमल के ऊपर नहीं होगा। भक्ति में और वैदिक विधि विधान में ये होता है, कर्मकांड में ये होता है कि हम पहले से मानकर चलते हैं कि हम शुद्धात्मा हैं और हम किसी भी अशुद्ध चीजों को नहीं स्पर्श करते। किंतु तंत्र में हम पहले से अपने आप को एक अशुद्ध आत्मा मानकर चलते हैं कि मुझसे ज्यादा मलिन और कोई है ही नहीं, और इसी मलिनता से, इसी अपवित्रता से ऊपर उठने के लिए मैं उन्हीं चीजों का सहारा लूंगा जो मेरे आसपास के समाज में मुझे मिल रही है। इसी कारण से महादेव ने कलयुग में कहा कि तंत्र साधना कलयुग के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगी, क्योंकि कलयुग में मलिनता ही व्याप्त होती है। सबसे ज्यादा मलिनता विचारों में व्याप्त होती है, वाणी और बर्ताव में व्याप्त होती है, समाज में व्याप्त होती है। उसी के बीच में रहकर उन्हीं द्रव्यों का, उन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हुए, चाहे वो मांस हो, चाहे वो मदिरा हो, चाहे वो हड्डियां हो, उन्हीं का प्रयोग करते हुए आप उनसे ऊपर उठकर दिखाते हैं कि देखो, मदिरा का प्रयोग करने के बाद भी मुझे मदिरा की लत नहीं लगी, मुझे उसका नशा नहीं लगा। मांस का प्रयोग करते हुए भी मैं उसके प्रति आसक्त नहीं हुआ, मोह नहीं हुआ मुझे मांस का। तो यही चीजें डेपिक्ट करती हैं तंत्र में। और इसीलिए वैदिक यज्ञों में और वैदिक विधि विधान में हम कभी असात्विक चीजों का प्रयोग नहीं करते। क्या घी सफिशिएंट है अगर सामग्री अनअवेलेबल है तो? देखिए, सारी सामग्री तो आपको लाने की जरूरत है नहीं, किंतु घी जो है वो एकमात्र सफिशिएंट नहीं है। इवन इफ आप एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा गया है कि आपको एटलीस्ट घी और हवन सामग्री, इन दोनों चीजों की आवश्यकता होगी अपने घर पर यज्ञ करने के लिए तंत्र साधना ऐप के साथ। मान लीजिए आप ऐप के साथ यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर ऐप में यज्ञ चल रहा है और आप यहाँ पर अपने घर पर बैठे बैठे यज्ञ कर रहे हैं, तो केवल इतना प्रयास कीजिएगा, अमेजोन के ऊपर से हवन सामग्री का पूरा पैकेट मिलता है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, हर एक शहरों में गायत्री परिवार का कोई ना कोई स्टोर जरूर होता है, या फिर पूजा सामग्री का जो कोई भंडार होता है, वहां पर गायत्री परिवार की हवन सामग्री जरूर प्राप्त होती है। मैंने अपने जीवन काल में, जब मैं संन्यास के मार्ग पर नहीं था, पूर्वाश्रम की बात कर रहा हूँ, जितने भी यज्ञ किए हैं,
सभी यज्ञों में मैंने, सभी साधनाओं में इतना ही आग्रह रखा कि मेरे पास घी हो, हवन सामग्री हो गायत्री परिवार की। मैं 2 किलो या 3 किलो अपने पास लेकर ही चलता था। मेरे घर पर हमेशा वो रहती थी स्टोर में। और सूखा नारियल हो मेरे पास आहुति में अर्पण करने के लिए, पूर्णाहुति के तौर पर। तो ये 3 चीजें जो है उसका तो मैं जरूर ध्यान रखता था। आप हवन सामग्री और घी, ये 2 चीज तो अपने घर पर जरूर रख सकते हैं। या तो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या तो अपने शहर में जाकर कहीं पर भी पूजा सामग्री भंडार से हवन सामग्री खरीद सकते हैं। जस्ट हवन सामग्री, उसमें कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। हवन सामग्री इज मोर देन इनफ। और घी का प्रयोग जब जब तांत्रिक यज्ञ आप तंत्र साधना ऐप के साथ कर रहे हैं, अपने घर पर फिजिकल यज्ञ आप इन दोनों सामग्री के माध्यम से कर पाएंगे। क्या गुरु दीक्षा आवश्यक है? मैंने आपको जवाब दे दिया। क्या महादेव एकमात्र गुरु हो सकते हैं आपके? उसका भी मैंने आपको उत्तर दे दिया। जो हमारे तंत्र शास्त्र का मत है वो मैंने आपको बता दिया, दक्षिणामूर्ति शिव के बारे में। ऐप इनिशिएशन क्या रियल इनिशिएशन है? तो जवाब है कि ऐप के ऊपर जो इनिशिएशन दिया जा रहा है वो उतना ही पावरफुल है, उतना ही पोटेंट है, जितना एक इन पर्सन इनिशिएशन पावरफुल होता है। जब भी आप मंत्र की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो मंत्र आपको किनके द्वारा मिल रहा है, ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पर ये मंत्र आपको सबसे पहले तो मिल रहा है स्वामी जी के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये उनका अपना जागृत मंत्र है। इसी कारण से ऐप इनिशिएशन इज इक्वली पावरफुल जो है इन पर्सन इनिशिएशन के मामले में। दोनों का इंपॉर्टेंस एक समान है। गुरु दक्षिणा कब और कितनी देनी चाहिए? गुरु दक्षिणा अभिन्न अंग है प्रत्येक साधना का और वेदों का, क्योंकि वेदों से ही तंत्र आया और वेदों से ही हमारी वैदिक साधनाएं भी आई। तो जब जब आप साधना करें तब कोशिश करिए कि आपने मान लीजिए 11 दिन का आप काली माँ का जाप कर रहे हैं, तो यदि प्रतिदिन आप नहीं एक अमाउंट डोनेट करना चाहते, तो 11 दिन के बाद तो एटलीस्ट प्रयास कीजिए। पहले तो आपका प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो है आप साइड में रखते हुए आप डोनेट कर सकते हैं दक्षिणा के भाव से। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो 11 दिन के बाद जब साधना या फिर आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उस समय पर कीजिए। जब आपकी शव साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद दक्षिणा अवश्य कीजिए, जितनी हो पाए यथाशक्ति यथा योग्य आपको जरूर करनी चाहिए। यदि आप साधना को पूर्णतया सिद्ध करना चाहते हैं, देवी माँ की साधना को पूर्ण करना चाहते हैं और परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं, देन इट इज डेफिनेटली रिकमेंडेड कि आप दक्षिणा कीजिए, जितना हो पाए जब हो पाए आपके अनुकूलन के हिसाब से। तो आई थिंक और बहुत सारे प्रश्न हैं, किंतु मैं एक दो प्रश्न और ले लेता हूँ। बच्चों को साधना कौन सी एज पर शुरू करनी चाहिए? तो स्वामी जी ने जो एज रिकमेंड की है वो है 12 वर्ष की आयु। कोई भी बालक जो 12 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है वो तंत्र साधना ऐप पर अपनी साधना की शुरुआत जो है वो कर सकते हैं, या फिर साधना ऐप पर साधना की शुरुआत कर सकते हैं। कैन भोग बी ऑफर्ड ड्यूरिंग और आफ्टर मार्जयामी? क्या जो भोग है, नैवेद्य, आप ड्यूरिंग मार्जयामी ऑफर करेंगे या फिर आफ्टर मार्जयामी? तो भोग हमेशा ऑफर किया जाता है साधना की शुरुआत से पहले। तो आपको मार्जयामी के समय भोग ऑफर नहीं करना चाहिए। आप जो नैवेद्य लेकर बैठे हैं वो नैवेद्य आप साधना की शुरुआत करने से पहले तंत्र साधना ऐप पर आप जब बैठे अपने आसन के ऊपर, उस आसन के ऊपर बैठने के तुरंत बाद मन ही मन देवी माँ के सामने वो भोग, यदि आपने फिजिकल लिया है थाली में, तो मन ही मन देवी माँ को अर्पण कर दीजिए कि माँ मैं आपको ये भोग अर्पण कर रहा हूँ। और फिर साधना की पूर्णाहुति पर आप उस नैवेद्य का सेवन कर सकते हैं। सो दैट्स माय आंसर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विक्रम कि आप प्लीज फिर से एक बार
लाइव पर आइए और हमारे जो प्रश्न हैं जो हमारे व्यूअर्स ने यहाँ पर लाइव में पूछे हैं वो आप बता सकते हैं। Thank you, Brahmachari ji. Anji, thank you so much for taking the time and answering, Brahmacharya. There are many questions that have come, and some of them you have already answered, and some of them we will request everyone to mail us the questions so that we can basis your answers right to them as well. Some of the questions are here. Maybe in the interest of time, we'll just take a few of them. Brahmacharya ji, already we know if the time is a little beyond what we had thought, and really thank you for your extra time. So one of the questions, Brahmacharya, that has come is, how do we know if our devotion to Ma is being reciprocated? Are there any signs in nature that we can perceive that can say, yes, we are getting closer? सबसे बड़ा लक्षण है कि जब देवी माँ के प्रति उनकी भक्ति करते वक्त, उनकी साधना करते वक्त आंखों में आंसू आना शुरू हो जाए, जब तीव्रता बढ़ जाए, जब आप अपने अश्रुओं को रोक ना पाए, जब आप अपने भाव को रोक ना पाए, जब आप अपने आप को व्यक्त करने से रोक ना पाओ, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस कि आपकी साधना जो है वो सही दिशा में जा रही है। सो दैट्स माय आंसर। Thank you, Brahmacharya ji. If in our lives, Brahmacharya ji, many people kind of give us guidance. Your uh, Kundalini is not proper. Your Kundalini has जाग चुका है, or there is some defect. Somebody has stolen something from you from sadhana point of view, etc. So when many of these are heard, it causes this fear. So how does one overcome this, and can we just keep that aside and focus on sadhana with that belief that I am doing the right thing? स्वामी जी की जो किताब है कुंडलिनी, उसमें पहले ही चैप्टर में एक कथा दी गई है। अ लेडी नेम्ड वीणा, वीणा जी जो है वो यहाँ पर आए थे और स्वामी जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने दर्शन किए स्वामी जी के। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, मेरी कुंडलिनी जो है, मेरे जो चक्रास हैं, उसके स्पिन ठीक नहीं है, वो ठीक से घूम नहीं रहे हैं। तो स्वामी जी ने पूछा कि सॉरी, आपने क्या कहा, क्या आप फिर से एक बार बता सकते हैं? उन्होंने कहा, स्वामी जी, मुझे एक चक्र एक्सपर्ट ने कहा, एक चक्र देखने वाले बहुत ही माहिर इंसान ने कहा, जो मार्केट में बहुत ही फेमस है, कि आपके चक्र जो है वो सही तरीके से घूम नहीं रहे और उसकी वजह से आपके काम के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो स्वामी जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से कहा कि क्या आप कोई मोटर है, क्या आप कोई गाड़ी है कि जिसके चक्र जो है वो सही तरीके से घूम ना रहे हो और जिसका इम्पैक्ट आपके काम के ऊपर आए या फिर आपकी लाइफ के ऊपर आए, फॉर दैट मैटर। सो बहुत सारे लोग इसी भ्रमणा में होते हैं और स्वामी जी ने उसी भ्रमणा को वहां पर खंडित किया है कि चक्रास का, कुंडलिनी एनर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है घूमने के साथ या फिर उसकी ऊर्जा चोरी के साथ, जो एक बहुत ही पॉपुलर टर्म हो चुका है आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली, कि मेरी ऊर्जा कोई चोरी कर रहा है या फिर मुझे लग रहा है कि मेरी साधना चोरी हो रही है, मुझे लग रहा है कि कुंडलिनी जो है वो मेरी जागृत हो चुकी है और कहीं ना कहीं मैं उसे सह नहीं पा रहा हूँ, उस एनर्जी को। ये सभी बातें बकवास बातें हैं, फालतू बातें हैं। एक बार कुंडलिनी किताब पढ़ लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि इन सारी भ्रमणाओं से बहुत ऊपर उठने की जरूरत है अब हमें। क्योंकि ये भ्रमणाएं और कुछ करे या ना करे, हमारे आध्यात्मिक उन्नति को, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को जरूर डाउन कर देगी। हमारा डाउनफॉल इन्हीं भ्रमणाओं के साथ होगा। तो कुंडलिनी ऊर्जा चक्रों के मामले में मार्केट में जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं, ऊर्जा की चोरी, साधना की चोरी, यदि आपकी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति अपार है, असीम है, कोई आपको छू तक नहीं सकता, तो निश्चिंत होकर साधना करिए और इन सारे भ्रम से बाहर निकल जाइए। Thank you very much, Brahmachari ji. And one of the sadhaks was asking, what if, which Mahavidya sadhana to do after finishing all the 10 Mahavidyas in the app? They finished one cycle each.
how to know which Mahavidya sadhana to continue with? सो महाविद्या की पूर्ण साइकिल कंप्लीट करने के बाद स्वामी जी ने तंत्र साधना ऐप जब लॉन्च हुई थी तब कहा था कि आपको माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी चाहिए। विक्रम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 बार 9 साइकिल माँ त्रिपुर सुंदरी की होनी चाहिए अलग हाँ से। जी, 10 साइकिल्स और 10। त्रियंत्र साधना, ब्रह्मचारी जी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो वही स्वामी जी ने विधान दिया था तंत्र साधना ऐप के लॉन्च के समय कि एक बार 10 की 10 महाविद्या पूर्ण हो जाए, फिर आपको वापस जाना है माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना पर। क्योंकि हमेशा स्मरण रहे, शास्त्रों ने भी कहा, स्वामी जी ने भी कहा, माँ त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मांडीय विद्या है, सर्वोच्च तंत्र विद्या है, उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं। श्री माता है, श्री महाराग्नि है, श्रीमद सिंहासनेश्वरी है, और देवताओं के चित्त की अग्नि से उनका प्राकट्य हुआ है, राज राजेश्वरी है। तो पूर्ण साइकिल 10 महाविद्या की साधना पूर्ण करने के बाद तंत्र साधना ऐप पर आप फिर से एक बार जाएंगे माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना पर, और 10 बार उनकी साधना यानी कि श्री यंत्र साधना का अनुष्ठान 10 बार और रिपीट करेंगे। एक बार आपकी 10 महाविद्या साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद। Thank you, Brahmachari ji. One more question that comes very frequently, Brahmachari ji, is some sadhaks are very already associated or have bhakti towards one Mahavidya. And maybe that is Ma Chinnamasta or Ma Baglamukhi. And they are not able to start with the rituals of that Mahavidya directly in the app. They have to go through Ma Kali, Ma Tara, and so on. So, how can one reconcile this and start? There is this feeling that, okay, am I doing this? And on the converse, somebody has this attachment towards Ma Kali, and after they finish Ma Kali sadhana, they want to do more of Ma Kali sadhana and not go ahead to the next because they don't have that connection yet. So, how to either build that connection? Should one pursue? Please give us your guidance, Brahmacharya. फ्यू इयर्स बैक जब यहाँ पर आश्रम में श्रीमद् भागवतम का एक डिस्कोर्स हुआ था, और उस समय पर आई थिंक स्वामी जी ने ये बात कही थी कि महाविद्या की साधना में कोई भी साधक 2 तरीके से गहराई में उतर सकता है। या तो आप दूरी तय कीजिए, यानी कि पहली महाविद्या, दूसरी महाविद्या, तीसरी महाविद्या, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और लास्ट में कमलात्मिका तक आप सभी महाविद्याओं को सिद्ध कीजिए। वो है दूरी तय करना। दूसरा प्रकार स्वामी जी ने दिया था कि आप गहराई में उतर सकते हैं समुद्र की, यानी कि एक महाविद्या को धारण कर लिया और उसी महाविद्या का महापुरुष शरण या फिर अनुष्ठान जो है वो बार बार संकल्प लेकर करते रहे, तब तक करते रहे जब तक आपको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त ना हो जाए। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप आ, महाविद्या की साधना में गहराई में उतर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका था कि यदि आपको छिन्नमस्ता देवी में अथवा आगे बगलामुखी या कमलात्मिका माँ में ज्यादा रुचि है और आपको कंपलसरी एक के बाद एक स्टेज क्रॉस करने पड़ रहे हैं, देखिए उसका एक शास्त्रोक्त कारण है। जब तक एक साधक माँ काली में जो नग्न है, नग्न स्त्री है, उसमें माँ का दर्शन नहीं करता, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता। जब तक वो अपने मूलाधार चक्र को काबू में नहीं लाता, नियंत्रण में नहीं लाता। मूलाधार चक्र यानी काम बीज का जो चक्र है, जहां पर सृष्टि का निर्माण होता है, प्रजनन संभव होता है, जब तक पहले हम उसे काबू में नहीं लाते, हमारी ब्रह्म ग्रंथि का विभेदन नहीं करते, माँ काली में एक नग्न स्त्री में माँ का दर्शन जब तक नहीं कर पाते, तब तक माँ तारा में नहीं जा सकते। माँ तारा तो फिर उनसे भी ज्यादा यंग है, उनसे भी ज्यादा युवा है। तो एक बार आपको आपके मन के अंधेरे से आप बाहर निकले, माँ काली रूपी अंधेरे से, उसके बाद आप माँ तारा के पास गए जो सूर्य के समान प्रज्वलित है। वो आपके मन के विकारों को, मन की ग्रंथियों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देती है और आपको महाज्ञान से, उस तेज से, महातेज से दीप्यमान कर देती हैं, प्रकाशमान कर देती हैं। उसके बाद बारी आती है माँ त्रिपुर सुंदरी की। जिस क्षण आप महाज्ञान से परिपूर्ण हो गए, उस एक क्षण के बाद आप समस्त त्रिलोक के ऊपर, यानी कि जो 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न, 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 प्रकार के जब बताए गए, वाचिक, उपांशु, मानसिक, 3 प्रकार के लोक बताए गए, स्वर्ग, भूलोक और पाताल।
ऊर्ध्व, भूलोक और अधोलोक, इन सभी के ऊपर आपका नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। आप स्वयं के ऊपर आधिपत्य प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपका अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इसीलिए ये 3 महाविद्या पहले हैं। जिस साधक का स्वयं के ऊपर नियंत्रण हो गया, उसके बाद तो वो भुवन के ऊपर राज ही करता है। यानी कि भुवनेश्वरी बनकर, भुवन का ईश्वर बनकर वो साधक जो है, वो फिर पूरी सृष्टि को चलाता है। एक बार वो हो गया, उसके बाद कई बार होता है कि आपकी प्रसिद्धि, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपके शत्रु भी उतने ज्यादा बढ़ जाए। तब बारी आती है माँ त्रिपुर भैरवी की, जो आपके भीतर भय का नाश कर देती है कि मैं बैठी हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आती है माँ छिन्नमस्ता, जो शत्रुओं का नाश कर देती हैं, भेदन कर देती हैं, उनका वध कर देती हैं, आपकी जिंदगी से शत्रुता का खंडन कर देती है। उसके बाद धूमावती, यानी कि जो भी आपके अनक्लियर थॉट्स हैं, जो भी फॉगी थॉट्स हैं आपके दिमाग में, ये करूं ये ना करूं, वो सारे दूर कर देती हैं। उसके बाद आती है माँ बगलामुखी। अब वाणी की बात हो रही है। अब आपकी वाणी में वो विद्यमान हो जाती हैं और वाणी के माध्यम से सारे कार्य कराती हैं। जहां पर बैठे वहां से ही, वो एक फिल्म का कोई डायलॉग है ना कि जहां पर मैं खड़ा रहता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। काइंड ऑफ, जहां पर आप खड़े रह गए वहीं से वो सारी जो सभा है वो सम्मोहित होकर आपको सुनती रहेगी, आपको देखती रहेगी। उसके बाद आती है देवी माँ मातंगी, जो पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है, तांत्रिक सरस्वती है। उसके बाद प्राप्त करने के लिए कुछ रहता नहीं है बाकी। एक बार मातंगी माँ को पूज लिया, उनको सिद्ध कर लिया, उसके बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आप पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। और अंतिम महाविद्या कमलात्मिका, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है ऐश्वर्य की, समृद्धि की और महाभोग की। क्योंकि माँ अंतिम अवस्था में अपने बच्चे को यही देती हैं, भोग के साथ मोक्ष प्रदान कर देती हैं। तो इसीलिए ऐप पर ये विधान दिए गए हैं। यदि आपको किसी भी एक महाविद्या में भी रुचि है, मान लीजिए बगलामुखी माँ में रुचि है, किंतु पहले की महाविद्या की साधना जब आप कर रहे हैं ना, आप अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण पा रहे हैं, आप अपने विकारों को नष्ट कर रहे हैं, अपनी वृत्तियों को काट रहे हैं, ताकि जब तक आप माँ बगलामुखी तक फॉर एग्जाम्पल पहुंच जाए, तब तक आपका जो उत्थान होना चाहिए, आपकी जो उन्नति होनी चाहिए, भौतिक एवं आध्यात्मिक, दोनों परिपूर्ण हो पाए और आप पूर्णतया देवी माँ जो आपके इष्ट हैं उनके भाव में लीन हो पाए। सो दैट्स द आंसर। Thank you so much, Brahmachari ji. I think that was the last question that we wanted to pose to you. Thank you so much for your time and for these answers. I'm sure all of us will be revisiting the answers time and again to really internalize it. So, to everybody who has attended today's session, thank you so much for your time and also all the questions you have asked. So, in case some questions were unable to be answered, please write to us at serve@tantrasadhana.app. We will put up in the chat and pin it as well. You can please reach out to us. And as Brahmachari ji started off the session, Navratri is coming. There will be special 10 days of Mahavidya rituals that we can do together. Please do participate and also invite whoever you think can take value, and we can create a bigger community of sadhaks doing these rituals in these uncertain times and pass the good will and good energy, good bhav to the world. Also, just to share with you, somebody had asked, we have also worked hard to create a special prasad this time as well. So we will bring it up, announce it during those days. It's in the final touches, something very, very special, and we will announce it in the circle groups. If you are not already in Tantra Circle groups, please sign up today and join there, and we will inform you of all the events. And Brahmachari ji, thank you so much for your time and all the guidance you have given. We look forward to meeting you again and taking a lot of guidance in the coming days. Thank you very much. Jai Shri Hari. Jai Shri Hari, everyone. Good night. थैंक यू ऐश्वर्य।